સ્નેહ રસહીન જે શ્વેત જાણી વિમુખ તાણી લીધો. આ કર્મપથ તો કેવો છે? તક્રસમ. તક્ર એટલે છાસ, અને બધો જ સાર જયારે નીકળી જાય ત્યારે ખાટી છાસ રહી જાય સાદી. એમાં કર્મપથ છે ને, યજ્ઞ યાગાદિ આદિનો માર્ગ, એ તો સ્નેહ અને ભજન રસ વગરનો તક્ર છાસ જેવો છે. એમાં કોઈ સ્વાદ નથી, એટલે વિમુખ તાણી લીધો. ત્યાંથી ખેંચી અને ભગવત સેવાના યજ્ઞમાં ગુસાઈજીએ જોડી દીધા. કે સાચો યજ્ઞ કોઈ હોય તો રોજ તમારા ઘરે ઠાકોરજીને મંગળા કરાવી, શિંગાર કરાવી, રાજભોગ ધરાવી, પોડાવી, અનેક પ્રકારથી એ પ્રભુને લાડ લડાવો છો. એનાથી મોટો યજ્ઞ વૈષ્ણવ માટે બીજો કોઈ નથી. આ ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણ આપ સેવા કરી શીખવે શ્રી હરિ ભક્તિ પક્ષ વૈભવ સુદ્રઢ કીધો. આપ પોતે સેવા કરીને શીખવે છે. અને કઈ રીતે સેવા કરે છે? અનેક અનેક પ્રસંગો તમે ગુસાઈજીના જુઓ, મહાપ્રભુજીના જુઓ. ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણ એકવાર મહાપ્રસાદ લેવા બિરાજમાન થયા, અને જ્યાં મોઢામાં ભાજી રોટીની સાથે મુખમાં મૂકી અને કાંકરી આવી. એક કંકર भाजी में रह गया और मुख में आया. અને જ્યાં કાંકરી મુખમાં આવી અને ગુસાઈજી નું હૃદય ભરાઈ આવ્યું. ચોધાર આંસુએ ગુસાઈજી રડવા લાગ્યા, અશ્રુપાત કરવા લાગ્યા. અમે સેવા કરવાના અધિકારી નથી, અમે ઠાકોરજીના સુખનો વિચાર કરતા નથી. આટલું પણ અમે ધ્યાન ન રાખી શક્યા કે ઠાકોરજીના શાક ભાજીમાં કાંકરી આવી ગઈ. સેવા કરવાને અમે લાયક નથી જાણતા પોતાની જાતને. હમણાં ને હમણાં હું સંન્યાસ ગ્રહણ કરી અને ઘર છોડીને નીકળી જાઉં છું. और બધા ચિંતામાં પડી ગયા. જ્યારે આવા વચન ગુસાઈજીના મુખેથી સાંભળે, બધા સમજાવે છે, અરે જયરાજ, અરે કૃપાનાથ, આ તો એકવાર ભૂલ થઈ ગઈ, ફરી નહીં થાય, ફરી આપણે સાવધાની રાખીશું. ના ના, ઠાકોરજીના સુખનો અમે વિચાર નથી કરી શકતા, સેવા કરવાનો અમને અધિકાર નથી, અમે તો આ છોડીને સંન્યાસ લઈને ચાલ્યા બહાર. ભીતરિયાને કહ્યું, હમણાં ને હમણાં મારા કપડા ભગવા રંગે રંગી નાખો, હું સંન્યાસ લઈને ઘર છોડીને જાઉં છું. બધા સમજાવે, બધા કોશિશ કરે, પણ કોઈનું ગુસાઈજી સાંભળતા નથી. એવો તાપ હૃદયમાં ગુસાઈજીને થયો કે પ્રભુના સુખનો વિચાર ન કરી શક્યો. બધા ચિંતામાં પડ્યા, અને સૌથી વધારે ચિંતા થઈ નવનીત પ્રિયાજીને. ઠાકોરજી, અરે ગુસાઈજી, અરે કાકાજી ઘર છોડીને મારી સેવા છોડીને જતા રહેશે તો એમના જેવા સુખનો મારો વિચાર, મારા સુખનો વિચાર એમને જેવો કોણ કરી શકશે? હવે બધા કોશિશ કરે, કોઈનાથી રોકાતા નથી. એટલે નવનીત પ્રિયાજીને થયું કે હું કઈ યુક્તિ કરું. અને ઠાકોરજી પોતાનો નાનો વાઘો હતો ને, એને ભગવા રંગે રંગી અને ગુસાઈજીના વસ્ત્રની પાસે સૂકવી દીધો. અને ગુસાઈજી જ્યાં પોતાના વસ્ત્રો લેવા માટે આવ્યા, અને જ્યાં લેવા જાય વસ્ત્ર જોયું તો નવનીત પ્રિયાજીનો વાઘો પણ ભગવા રંગે રંગાયેલો છે. પૂછ્યું કે અરે આ વાઘો કોણે રંગ્યો? નવનીત પ્રિયાજીએ કહ્યું, મેં. કાકાજી, જો આપ સંન્યાસ લઈને ઘર છોડીને જાઓ તો હું સંન્યાસ લઈને આપની જોડે સાથે આવું છું. પણ આપના જેવા મારા માટે સુખનો વિચાર આપનાથી અધિક બીજું કોણ કરી શકે? આ ભાવ. પોતે પ્રદેશ કરવા પણ ગુસાઈજી પધારતા તો અન્નનો ત્યાગ કરી કેવલ દૂધપાન કરીને રહેતા. અને જ્યારે પ્રદેશ કરવા પધારતા ત્યારે એકવાર પોતાનો કડા સોનાના રત્ન જડિત ગિરધરજીને આપીને પધાર્યા, અને કહ્યું કે ક્યારે કોઈ બી જરૂરી કાર્ય આવે ત્યારે આને વેચી અને પછી કાર્ય આગળ ઠાકોરજીનું ચલાવજો. एक बार गिरधर जी नवनीत प्रिया जी को पलना में झुला रहे थे, और झुलाते समय सामने धौंधी बैठे हुए इतने सुंदर पद गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं कि नवनीत प्रिया जी इतने प्रसन्न हो गए कि स्वयं ताल देने लगे. नवनीत प्रिया जी गा रहे हैं धौंधी और ताल दे रहे हैं नवनीत प्रिया जी. और यह दृश्य जब गिरधर जी ने देखा बड़े प्रसन्न हुए और हुआ करे मेरे ठाकुर जी को किसी की नजर न लग जाए, क्या करूं, क्या नौछावर करूं. और जो कड़े दे गए थे गुसाई जी वो कड़े निकालकर और नौछावर करके धौंधी को दे दिए. अब दे दिए, सेवा से बाहर आए, तब गिरधर जी को विचार आया, अरे काका जी तो इसलिए कड़े दे गए कि कुछ आवश्यक कार्य हो तब इसको बेच कर और कार्य चलाना, और मैंने तो नौछावर करके दे दिए. अब काका जी आएंगे, पूछेंगे, क्या उत्तर दूंगा. थोड़े दिन हुए और गुसाई जी पधारे. संकोच में है गिरधर जी, डर रहे हैं, मैं क्या उत्तर दूंगा. गुसाई जी पधारे, कहा गिरधर जी उदास क्यों हो. काका जी एक अपराध हो गया. क्या हुआ.
अरे आप वो कड़े दे गए थे ना सोने के, कुछ जरूरी कार्य आए तब उसको बेच के निर्वाह करने की बात थी। पर एक बार दौंदी इतने सुंदर पद गा रहे थे और हमारे नवनीत लाल जो प्राण प्रिय हमारे हैं इतने प्रसन्न हो रहे थे, ताल दे रहे थे, और मुझे हुआ क्या नौछावर करूं, तो मैंने एक कड़े नौछावर करके दौंदी को दे दिया। क्षमा करना, अब ऐसा अपराध नहीं करूंगा। अरे गुसाई जी ने कहा, अरे नवनीत लाल प्रसन्न हुए तो खाली कड़े क्यों दिए, अपना जो कुछ था सब नौछावर करके क्यों नहीं दे दिया? क्योंकि प्रभु की प्रसन्नता से अधिक हमारे जीवन में और कुछ नहीं। आप सेवा करी शीघ्र में श्री हरि, भक्ति पक्ष वैभव सुदृढ़। महाप्रभु जी को देखिए, दामोदास संबलवारे हो, सेठ पुरुषोत्तम दास हो तो वहां राजसी सेवा भी है, और अम्मा क्षत्राणी आदि साधारण वैष्णव हो तो वहां सहज सेवा भी है। सभी प्रकार स्वयं महाप्रभु जी सेवा कर करके वैष्णव को सिखाते हैं, देखो इनमें बाल भाव रखियो, प्रगट स्वरूप जानियो, साक्षात नंद नंदन जानियो। और जहां महाप्रभु जी ये कहकर जाते और वैष्णव वही उसी प्रकार का भाव रखते, और तुरंत वार्ता में लिखा हुआ आता है, ता पाछे प्रभु सानुभाव जतावन लागे और मांग मांग कर आरोगन लागे। श्री महाप्रभु जी जिनके वहां पधरा कर जाते वहां उनको साक्षात स्वानुभाव होने लगता। श्री गुसाई जी भी श्रीनाथ जी की जब सेवा, सप्तम आख्यान में तो गोपाल दास जी कितना सुंदर वर्णन करते हैं कि रोज गोकुल से पधारते, धारिया गिरिवरी श्री गिरिराज धरणो ताप हरवा, तुरंग चाले वायु वेगे उतावड़ो, जेम नौका चाली सिंधु तरवा। अद्भुत बात गोपाल दास करते हैं कि गुसाई जी गोकुल से गिरिराज जी पधारते श्रीनाथ जी की सेवा के लिए, और अश्व पर सवार होकर जान लगाम खींचते हैं अश्व की, मानो हवा से बात करता हुआ तुरंग ऐसा भागता है, ऐसा भागता है। क्यों, कैसा लगता है? मानो नौका चाली सिंधु तक। तुरंग चाले वायु वेगे उतावड़ो, जाने नौका चाली सिंधु तरवा। जैसे एक छोटी सी नौका कोई महासागर पार करने के लिए जाए तो उस नौका वाले को होता है कि सागर तो जने कब पार होगा, कब पार, कितना बड़ा सागर है। वैसे रास्ता छोटा है पर मिलने की तत्परता बड़ी है, इसलिए छोटा मार्ग भी बहुत लंबा लगता है। फूल विविध भूषण अंग धरवा। और गुसाई जी कैसे पधारते हैं, जामा आदि धारण करके अश्व पर सवार होकर और एक फेंट बनाते हैं। आज जो श्रीनाथ जी बाबा को श्रृंगार धरने हैं, वस्त्र धरने हैं, माला जी धरनी है, सब एक फेंट में बांध लेते हैं और तुरंग पर सवार होकर गुसाई जी उतावले उतावले श्रीनाथ जी के पास पहुंच जाते हैं। रत्न मुक्तावली पाठ सूत्री करी, गल सरी शोभिता करे श्रृंगार। और अनेक प्रकार की मालाएं सिद्ध की है, अनेक प्रकार की, अब जाकर पहुंच गए गुसाई जी वहां, और अनेक प्रकार की सामग्री सिद्ध की है, दूध घर, मेवा, अनचकड़ी, सकड़ी, सभी प्रकार के भोग श्रीनाथ जी को धरे हैं। खूब लाल लड़ाए श्रीनाथ जी को। और अब वापस गोकुल जाने का समय हुआ, और जहां गोकुल जाने का समय हुआ और एक एक ने कंठे आरोपे हार, एक एक ने कंठे, कहीं पाठांतर भेद ये मिलता है, एक में एक ने कंठे, मतलब गुसाई जी ने सुंदर पुष्प की माला श्रीनाथ जी को कंठ में धराई। वही गुसाई जी जहां जाने लगे तो श्रीनाथ जी बाबा ने कहा ठहरी काका जी, और जहां गुसाई जी रुक गए तो जो मुट्ठी वाला हाथ था श्रीनाथ जी का, और मुट्ठी सीधी करी, और श्रीनाथ जी बाबा ने स्वयं एक माला सिद्ध कर रखी है, और वह माला लेकर एक मेक ने कंठे आरोपे हार, और गुसाई जी के कंठ में धरा दी। गुसाई जी श्रीनाथ जी कुसुमावली ग्रथित हाथ एक मेक ने आरोपे हार।
एक एक को धरा रहे। और अब तो जाने का समय हो गया है। देखो जितनी सेवा में करने का आनंद गुसाई जी को है, उतना ही सेवा लेने का आनंद श्रीनाथ जी को है। देखो कितना सुंदर क्रम गुसाई जी महाप्रभु जी ने हमको सेवा का दिया है। पूरा जन शिक्षा करते कृष्ण भक्ति, आप वैष्णव जनों को सिखाने के लिए सेवा मार्ग प्रकट किया है। और सेवा यानी क्या? ये अष्टयाम सेवा क्या है? जो सारस्वत कल्प में नंदालय में व्रज भक्त जिस प्रकार ठाकुर जी को लाल लड़ाते, उसी प्रकार से, उसी भावना से हम आज भी अपने घर में वही आठों भावों से, अष्टयाम भाव से अपने घर में ठाकुर जी को लाल लड़ाते हैं। जैसे नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा, यथा व्रज गोपिका नाम, भक्ति कैसे करनी, तो नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा है गोपी जनों की तरह। महाप्रभु जी ने भी कहा कि गुरु कौन है पुष्टि मार्ग के, तो कहा गोपिका नाम गुरु प्रोक्ता। वैष्णव जनों के गुरु गोपी जन है। सेवा रीत प्रीत व्रजजन की, जनहित जग प्रगटाई, प्रगट भय मार्ग रीत दिखाए। श्री महाप्रभु जी ने यह मार्ग रीत और प्रीत, सेवा रीत प्रीत व्रजजन की, जनहित जग प्रगटाई। देखो ये रीत और प्रीत दोनों महत्व की है। वैष्णव भले एम के ठाकुर जी तो भावना भूख्यान प्रेम थी, जे करो ये चाले ना, રીત પણ એટલી જ મહત્વની છે, क्योंकि रीत के बिना प्रीत का भी आनंद प्रभु को नहीं आएगा। इसलिए रीत कौन सी, तो के गोपीजनों की। इसलिए पहले रीत का जो प्रेम આપણા હાથમાં નથી, કોઈ કે ભાવથી સેવા કરો, પણ ભાવ કોઈ વસ્તુ છે કે હાથથી લગાડી દઈએ? ભાવ લગાયા નહીં જાતા, ભાવ તો પ્રગટ હોતા। અને એટલા માટે પ્રેમ આપણા હાથમાં નથી, પણ રીત તો આપણા હાથમાં છે। અને આ રીત પણ સાધારણ નથી પુષ્ટિ માર્ગની, એ વ્રજભક્તોની રીત છે। અને કદાચ ભાવ નથી જાગતો છતાંય રીત પ્રમાણે કરો છો તો એ ઠાકોરજી કૃપા અવશ્ય કરે છે, કારણ કે આ ગોપીજનોની રીત છે। અને તમે જ્યારે આ રીતથી કરો ત્યારે ઠાકોરજીને એમ લાગે કે કોઈ ગોપી મારી સેવા કરી રહી છે। આ વ્રજભક્તોની રીત છે। અને મહાપ્રભુજીની રીત એટલી ઠાકોરજીને ગમી કે રહ્યો મોહે શ્રી વલ્લભ ગ્રહ ભાવે, મને તો વલ્લભના ઘરે ગમે છે। भोग श्रृंगार यशोदा मैया श्री विठ्ठलनाथ के हाथ को भावे। तो ऐसा क्यों कहा ठाकुर जी ने कि ब्रज से भी अधिक मुझे आनंद गुसाई जी के घर में आया? क्योंकि व्रज में सेवा क्रम में जो जो सूक्ष्म श्रम पढ़ते थे नंदालय में, वो भी महाप्रभु जी ने और गुसाई जी ने सेवा क्रम से निकाल दी। अब नित्य लीला में बाची कई ऐसी वस्तु, कई ऐसे प्रकार आपको कीर्तन साहित्य में और हरिराय जी कृत नित्य लीला में मिलेंगे जो हमारे सेवा क्रम में नहीं आते। जैसे कड़वो तेल तरी राख्यो नित्य लीला में आता है, तो सेवा में उपयोग में नहीं आता। या मिर्चन के शाक, तो कई निधि स्वरूपों में इस प्रकार से मिर्च का उपयोग नहीं होता। या जैसे आप कीर्तन साहित्य देखो, फूलन की गादी, फूलन के तकिया, कुसुमन रावटी आदि के आप कीर्तन बाँचिए तो फूलन की गादी, फूलन के तकिया, तो इस प्रकार गादी में हमारे यहाँ फूल नहीं बिछाए जाते। देखो माधव भट्ट कश्मीरी के प्रसंग में आता है ना कि इस प्रकार से फूल से सैया करी और सुई रह गई, और सुई ठाकुर जी को लगी तो तीर खाना पड़ा। मतलब जहां जहां रीत चुके हैं वहां वहां प्रभु को श्रम पड़ा है। और इसीलिए जो जो सूक्ष्म श्रम नंदालय में पड़ते, जैसे रंग महल में पड़ गए पर्दा, धरी अंगीठी सुखदाई, और सैया मंदिर में वैसे अंगीठी नहीं आती इस प्रकार से। तो अनेक अनेक आप क्रम देखिए जहां सूक्ष्म श्रम नंदालय में, व्रजलीला में भी प्रभु को पढ़ते थे, वो सूक्ष्म श्रम भी महाप्रभु जी ने सेवा क्रम से निकाल दी। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा रहो मोहे